हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन और इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट। So basically, when industries or some domestic wastewater after treatment, it is discharged in water sources, there are many types of pollutants that may be discharged. So these water pollutants that will create the water pollution, it will change its physical, chemical and biological characteristics, and that will affect the human health if we are consuming such kind of water, and it may result in varieties of waterborne disease. So first we'll see that which are the different types of water pollutants that may be present in water. So first is pathogen. The meaning of pathogen is disease causing bacteria or virus or any microorganism. Some pollutants may be inorganic in nature like acid, alkali, metals which are non-biodegradable. Some are organic in nature that may come from sewage or certain effluent from dairy and food industry. Some sediments are there, some metal suspended metals may be there, some synthetic organic compounds like pesticide, fertilizers, some radioactive substance may be present, thermal pollutant that may be coming from some thermal power plant having high temperature, some suspended colloidal or dissolved particles they may be present, and certain toxic compounds like cadmium, chromium, copper, zinc, nickel, etc. So any pollutant that may be of three different size range, and that is called as dissolved, colloidal and suspended or non-filtrable range. So according to the size it is classified. So if the size is having greater than 1 micrometer, it is generally termed as non-filtrable or suspended matter. If the size range is between 10 raised to minus 3 to 1 micrometer, it is called as colloidal range. And this colloidal particle, they are responsible for major turbidity in our water. Next is dissolved. So that dissolved particles are very less in size, so less than 10 raised to minus 3 micron. They are generally called as dissolved types of solids present in water. Now, what are the effects of all these water pollutants if they are present in water? So, सबसे पहला, अगर पैथोजन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो waterborne disease करेगा. So, many types of waterborne disease like cholera, dysentery, टाइफाइड फीवर वो सब स्प्रेड हो सकते हैं अगर ऐसा पॉल्यूटेड वाटर पैथोजन वाला अगर हम पीते हैं. तो उसको रोकने के लिए द क्लोरीन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, जो ऑल द पैथोजन को किल करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाता है. सो पैथोजन आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसको किल करने के लिए क्लोरीन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट अगर उसका इफेक्ट कम करना है तो. Next is dissolved oxygen. Basically this is not the water pollutant, but to understand the concept of कि अगर ऑक्सीजन कम होता है तो वाटर पे क्या इफेक्ट होता है, we have to understand the concept of dissolved oxygen. Basically this dissolved oxygen is very essential parameter. अगर पानी में प्रॉपर प्रोपोर्शन में वो प्रेजेंट है तो वो उसको एरोबिक और फ्रेश रखेगा. सो पानी के अंदर कोई भी एक्वेटिक लाइफ को सरवाइव करना है तो उसके लिए मिनिमम 4 मिलीग्राम पर लीटर डिजोल्ड ऑक्सीजन मीन्स पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन रहना चाहिए. अगर वो डीओ का कॉन्सेंट्रेशन 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाता है तो एक्वेटिक लाइफ के मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. सो बेसिकली यू कैन से दैट less than 4 milligram per liter is the critical DO concentration, and if it is below that it will kill the aquatic life in water bodies. So DO की क्वांटिटी जनरली सॉल्युबिलिटी कितनी है ऑक्सीजन की, पार्शियल प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, प्योरिटी क्या है, उसके हिसाब से चेंज होता है. जैसे जैसे यू कैन सी दैट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डिजोल्व ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है. तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. So there are two types of oxygen demand. First is biochemical oxygen demand and second is chemical oxygen demand. ये दोनों बहुत ही important पैरामीटर है जब हम वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं. So first, how this oxygen demand that will affect our aquatic life. So effect of oxygen demanding organic waste on aquatic life. So dissolved oxygen जैसे आपको पता है all the एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दे नीड ऑक्सीजन. तो जब भी अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिक मटेरियल अगर पानी में डिस्चार्ज किया जाता है तो
ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको एज अ फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, and while consuming this as a food they need oxygen and some nutrients। और इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके सिंपलर फॉर्म CO2 और H2O में कन्वर्ट करते हैं और नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मीन्स अगर आप कोई भी पानी में ऑर्गेनिक मैटर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाएंगे और ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। सो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतना ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, और जितना ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा उसकी वजह से ऑक्सीजन तुरंत डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा। तो उसी को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। So it is the amount of oxygen required or demanded by the aerobic microorganism to break down the organic matter into simpler form। मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ के वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पॉल्यूशन कम करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ऑक्सीजन को डिप्लीट करते हैं। तो अगर बीओडी अगर कोई भी रिवर में ज्यादा है उसका मतलब ये है कि उसका ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है और ऑर्गेनिक मैटर का प्रोपोर्शन भी ज्यादा है, मीन्स उसका पॉल्यूशन लेवल ज्यादा है। सो बीओडी का लिमिट अगर हमको कोई एफ्लुएंट डिस्चार्ज करना है सरफेस वाटर सोर्स में तो 20 मिलीग्राम पर लीटर होता है। सो इफ बीओडी इज हाई मीन्स पॉल्यूशन लोड इज हाई एंड इट विल डिमांड मोर ऑक्सीजन, सो इट विल डिप्लीट योर ऑक्सीजन फास्टर। नेक्स्ट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी अगर हम लैब में करते हैं तो हमको 5 दिन या 3 दिन का टाइम लगता है। तो उसके ऑल्टरनेटिव में एक टेस्ट है जिसे बोला जाता है सीओडी। सो सीओडी इज नथिंग बट इट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो डिमांड ऑक्सीजन की बैक्टीरिया का द्वारा की जाती है उसकी जगह यहाँ पे हम केमिकली ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबिलाईज करते हैं। सो COD is the amount of oxygen required to chemically oxidize the biodegradable as well as non-biodegradable organic matter. Bacteria cannot degrade the non-biodegradable organic matter, but chemicals can degrade both biodegradable as well as non-biodegradable. तो कितना ऑक्सीजन चाहिए to degrade the total organic matter? It is generally termed by chemical oxygen demand. तो उसमें ऑक्सीडेशन करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं लाइक K2Cr2O7 अंडर एसिडिक कंडीशन। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज जनरली हायर देन बीओडी क्योंकि वो दोनों बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है एंड उसको स्टेबिलाईज करता है। सो बोथ दिस पैरामीटर्स इट विल गिव यू द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ योर पॉल्यूशन इन अवर रिवर। अगर वो ज्यादा है मीन्स पॉल्यूशन ज्यादा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो देयर आर टू फिनोमिना दैट विल अकर। फर्स्ट इज बायो एक्यूमुलेशन एंड सेकेंड इज बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मीन्स लिविंग एंड एक्यूमुलेट होना मतलब एडअप होना। तो जब भी अगर कोई भी केमिकल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बिल्डअप होता रहता है और एक्यूमुलेट होता रहता है तो उसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बट एक ऑर्गेनिज्म से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब ट्रांसफर होने लगता है मीन्स उसका कॉन्सेंट्रेशन मैग्नीफाई होने लगता है, इट इज कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। सो जैसे कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, सपोज DDT और मर्क्यूरी, वो सपोज पानी में प्रेजेंट है तो जू प्लैंकटन जो अगर उसको कंज्यूम कर रहा है उसकी बॉडी में भी कुछ है तो यहाँ पे 0.04 ppm। अगर उसको स्मॉल फिश कंज्यूम कर रहा है तो उसकी बॉडी में भी वो DDT या पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये भी उसके अंदर ऐड होता जाएगा। तो एक लेवल से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ये बढ़ता जाएगा। फिर ये स्मॉल फिश को अगर लार्ज फिश कंज्यूम करती है उसकी बॉडी में तो है बायो एक्यूमुलेशन तो है, उसके साथ साथ मैग्निफिकेशन होगा क्योंकि इसका जो पर्टिकुलर स्मॉल फिश का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी यहाँ पे एडअप होगा। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर बायो एक्यूमुलेशन that will go on magnifying at higher trophic level or higher food level, and that is called as biomagnification. So this figure shows how this concentration increasing. So highest level पे जो इंसान होगा या जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा बायोमैग्निफिकेशन।
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड मैग्निफिकेशन। इसमें खुद की ही बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इसमें दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे वो ट्रांसफर होता है, यानी कि मैग्नीफाई होता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव क्लोरीन। क्लोरीन बेसिकली इट्स अ डिसइंफेक्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू किल द पैथोजेंस, बट एट द सेम टाइम अगर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में है तो ट्राई हेलोमीथेन्स या डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट बनाता है जो कार्सिनोजेंस है, मतलब कैंसर भी हो सकता है। उसके अलावा भी काफ़ी पेस्टिसाइड सॉल्वेंट्स वगैरह अगर प्रेजेंट हो तो कैंसर, लीवर, किडनी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रेट अगर प्रेजेंट है ग्रेटर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर तो ब्लू बेबी डिजीज या मिथेमोग्लोबिनेमिया कर सकते हैं। तो दिस इज द फिगर ऑफ ब्लू बेबी डिजीज। अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी प्रेजेंट है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक मीनामाटा डिजीज कर सकता है। अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टॉक्सिक्स कंपोनेंट ई वेस्ट के अंदर है तो इट में ऑल्सो लीच आउट इनटू ग्राउंड वाटर की क्वालिटी खराब कर सकता है, सरफेस वाटर की क्वालिटी खराब कर सकता है। ये जो हैवी मेटल्स जो यूज होते हैं ई वेस्ट में वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो एनवायरमेंट पे और ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं और दे मे बी पॉसिबली कार्सिनोजन जो कैंसर कर सकते हैं। Other effect of this fluoride. Fluoride is very important as far as our teeth and bones are concerned. But उसका जो वैल्यू है, उसका जो लिमिट दिया गया है as per our IS standard, it is 1 milligram per liter acceptable and 1.5 milligram per liter permissible. It is called as two-edged sword. Two-edged sword का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत कम हुआ तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर है तो इट विल रिजल्ट इन डेंटल कैरीज और डेंटल केविटीज, मतलब ये टाइप की कैविटीज हो जाएगी आपके दांतों में। सो दिस इज द फिगर ऑफ डेंटल कैविटीज अगर फ्लोराइड लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर है। अगर फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है और कंटिन्यूअसली अगर आप ऐसा पानी पी रहे हो तो इट में रिजल्ट इन डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस। डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस का मतलब क्या है कि आपके दांत जो है उसका जो शाइनी अपीयरेंस है वो चला जाएगा और ऐसे चौक व्हाइट पैचेस दांत पे हो जाएंगे जो और उसको बोलते हैं मॉटल इनेमल एंड दिस इज द अर्ली साइन ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस। फिर थोड़े टाइम बाद येलो, ब्राउन, ब्लैक ऐसा होता रहेगा और एकदम करोडेड अपीयरेंस देगा। नेक्स्ट इज स्केलेटल फ्लोरोसिस। सो बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन पे अगर फ्लोराइड कंज्यूम होता है तो जो एजेड पीपल है उनके अंदर बोन्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। उनका पेन होना, स्टिफनेस होना बैक के अंदर, जॉइंट्स में, लिम्ब में और सब जगह पे नेक मूवमेंट में प्रॉब्लम होना, ये सब हो सकता है जिसे बोलते हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस। So skeletal fluorosis affect your bones and dental fluorosis affect your particular teeth. Then effect of thermal discharge. Thermal discharge मतलब heated और hot water. जब थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट में से जो भी पानी निकलता है उसका टेम्परेचर हाई होता है। एज वी डिस्कस दैट इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस योर डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल गोज डाउन और उसकी वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट एक्वेटिक एनिमल पे इफेक्ट होता है और वो मरने लगते हैं। ऑल्सो फाउल स्मेलिंग गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन दिस केमिकल concentration of certain compounds. So that will also contribute to the death of aquatic life. So these are some of the effects that we have discussed. Now one major effect that is observed, it is called as eutrophication. Basically this eutrophication, it is consisting of two Greek words, that is EU. EU means well or enrich, मतलब जरूरत से ज्यादा, और ट्रॉफ्स इज रिलेटेड टू फूड और न्यूट्रिएंट, मतलब जरूरत से ज्यादा अगर फूड या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है आपकी वाटर बॉडी में तो उसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। सो ओलिगोट्रॉफिक इज लेस न्यूट्रिएंट, मेसोट्रॉफिक इज मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स एंड यूट्रोफिक मीन्स एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। तो ये एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? तो जनरली दिस फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा दे आर कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रिएंट्स और नॉर्मली वो एग्रीकल्चरल रन ऑफ में होता है क्योंकि फर्टिलाइजर्स में हम दिस नाइट्रोजन फॉस्फोरस वी आर यूजिंग। सो जब ऐसा फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं केमिकल तो पानी के साथ मिलके वो नियर बाय रिवर सोर्स में या वाटर बॉडीज में जाता है एंड दिस नाइट्रोजन फॉस्फोरस
जो न्यूट्रिएंट है वो अल्गल ब्लूम या फाइटोप्लैंक्टन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसकी वजह से पूरा जो अपर लेयर है दैट विल बी covered with this algae and that is called as algal bloom। एंड उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है नीचे के लेयर में, और जब वो पर्टिकुलर algae भी डाई होता है तो दैट में बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सम सेडिमेंट्स और सस्पेंडेड मैटर। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी फिश वगैरह है या अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं ड्यू टू एनॉक्सिक, मतलब ऑक्सीजन कम होना या एकदम खत्म हो जाना जब एनोरोबिक हो जाता है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ यूट्रोफिकेशन। दिस इज algal bloom। algae पूरा अपर लेयर पे आ गया है, उसकी वजह से नीचे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल मर जाएंगे। So there are basically two types of eutrophication. First is natural. Naturally जो भी nutrients है उसकी वजह से थोड़ा algae का growth होना, it is natural, and cultural means due to human activity। तो eutrophication की वजह से क्या हो सकता है कि डोमिनेंट बायोटा चेंज होता है, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी डाइवर्सिटी कम हो जाती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स उनका बायोमास इंक्रीज होता है, क्योंकि जो भी algae डाई होगा वो सब वहीं पे एक्यूमुलेट होता रहेगा, टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाता है। देन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इंक्रीजेस, जो भी सेडिमेंट्स है वो सब नीचे सेटल होना स्टार्ट होंगे और उसकी वजह से उसका लाइफ स्पान जो भी लेक वगैरह है उसका कम हो जाएगा। एनॉक्सिक कंडीशन मतलब कम ऑक्सीजन की वजह से फिश वगैरह किल हो जाएंगे। सो हाउ टू कंट्रोल दिस यूट्रोफिकेशन, सबसे पहले मिनिमाइजिंग द पॉल्यूशन। जो भी अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, ऐसा कोई फ्लो पानी में आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने का जो भी म्यूनिसिपलिटीज या इंडस्ट्रीज है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। सो यू हैव टू स्ट्रेंथन द लॉज एंड रेगुलेशन सो दैट दे शुड नॉट डिस्चार्ज सच काइंड ऑफ fertilizer waste in this particular water bodies। then ultrasonic irradiation, so इसके जो फ्री रेडिकल्स हैं वो भी algae को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर जा रहे हैं उसको रिसाइकल करने का ट्राई कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ algal bloom बाय ड्रेजिंग, ड्रेजिंग मतलब अपर लेयर को साफ करके उसको रिमूव कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट या क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, सो दैट कैन किल दिस, इट इज कॉल्ड एज algicide। उसको algae को रिमूव कर सकते हैं। सॉइल इरोजन रोक सकते हैं, लाइम ऐड करके फॉस्फोरस को हम रिमूव कर सकते हैं। सो देर आर सर्टन मेथड्स दैट वी कैन अप्लाई टू कंट्रोल द यूट्रोफिकेशन। So these are some of the effects that we have discussed that is due to water pollution or water pollutants. Thank you.